Okay, let's start. Let me share my screen. So probably today your CSS will end. Okay, so today we are going to see responsive design. So that is like I would say a sum up of whatever we have done. Okay, but if your website is not responsive, okay, it is of no use. So responsive, I will explain. Then I will show you ways to make it responsive. And then after that, I will actually show you the direct ways of making it responsive. Okay, like the code that you can directly use it in your app website. Okay. Is my screen visible? Is my screen visible, team? Okay. All right. So first question, what is responsive design? Okay, this is the very first question. What is responsive design? Okay. So responsive design will make your web page look good on all screen size devices. Okay, that is the idea of website which is responsive in nature. Okay, if I open my website in desktop, if I open my website in laptop, if I open my website in tablet, if I open my website in phone, it should look good. There should be no horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar is this one, this one. Okay, this is vertical. So the horizontal is this below one. So that should not come. Okay. For example, if I open Indigene, you all can open Indigene at your end as well. Okay. So now what I will do, I will right click here. I will go to inspect. I showed you and I will told you like you can easily check the CSS code and the HTML code for any website, right? If you go to Elements, you can see HTML code here and you can see the CSS code here. Just 1 second. Okay. Anyways, I don't need this part. Okay, let me open it in different browser. Maybe there's an issue with Chrome, like in my laptop. So I'll just pull up other browser. Okay. So you can see this is the browser I have. Okay. Microsoft Edge. I will just minimize the screen size. So just listen to this part very carefully. Okay. Initially, once you minimize, this is how it is going to look. Okay? Once you minimize, this is how it is going to look. So what you all have to do is you have to click here. Okay. This is called toggle device emulation. You just need to click on this part. Even here you can open the same thing like this. Even if you're using Chrome, you will get this option. Okay, this toggle device toolbar here. This icon. Just click on it. Okay. Even here you will get this icon. Just click on it. Now here you get the width and height that you're looking at right now. That means if my website is opened in iPhone SE, this is how it will look. If I open a website in iPad mini, this is how it is going to look. So you can select any device here. So you really don't have to actually open your website in a different device. You can actually select the device from here. If I want to see how my website will look in iPad Pro, this is how it will look. Okay. Any phone, iPhone 14 Pro. And if you go to edit, you can select the mobiles from your end also. Like you want to add Galaxy S9 plus S8, you can add mobiles from your end. By default, they have added some mobile phones. Okay. Let's say this phone. And if you click on responsive, the first option, it will allow you to decrease and increase the width and height like this. Okay. And if you want to manually do it, you can do it from here. Like if you don't want to select device, like if you select iPhone SE, right? So this is the width, this is the height. If you select Galaxy S8 Plus, this is the width, this is the height you're looking at. Let's say if you select responsive, you can actually give like custom, like 2000 width and 400 height. This is how the website is going to look. Okay? This is how the website is going to look.
or you can decrease the width and height like this. So now the idea is when my screen size, I'll give you approximate, like when you're talking about desktop screen, the desktop screen width is approximately 2400 pixel width. Okay. This is all pixel value. When you open a website in a laptop, it is approximately 1500 pixel width. When you open this in iPad, it is approximately 990 pixel. When you open your website in mobile phone, it's up in the range of 480 pixel to like 600 pixel. Okay, that is how it is. So we have to take these approximate values. So now the responsive part is, if I'm opening my website in any screen size device, it should look good. Okay, and if you observe, okay, and if you observe, see, if it is header, can you all see header? When I reduce the screen size, it is changing to is this 3 buttons, 3 icons. Okay, this is called hamburger button. Okay, now if you look at this part, it is heading. This is one section, this is another section. Using flex, I can create it. When I reduce the screen size, it is going below. Okay, it is not adding horizontal scroll bar to scroll. It is actually bringing it below. Okay, so it is going from 2 columns to 1 columns. Similarly here, if you see, there are 2 columns, it is going to 1 column each. Here also, you can see, these are 2 columns. When you reduce, they will become one column in each row. Okay, and this is the form. So now the main idea is to make it responsive. So the flex, whatever we did in flex yesterday, it will just bring below. Like we go from 2 column to 1. If it's 4, we go from 4 to 2, 2 to 1. Okay, I'll be creating those parts. So that means you have to, like, based on screen size, you will put some condition. Okay, some of you might be wondering, do I need to consider all the width? Of course not. Like you can't do 786 and 787. Every pixel you can't pick. We go in ranges here. Okay, so I'll give you the standard range we have. So those standard range are approximately according to the desktop, mobile, laptop. Okay, so like I mentioned, there are like standard range we have. Okay, you're not going to pick 780 pixel and then what will be the screen size? Then you will pick 781, 782, 783. Obviously, it's practically impossible to pick every pixel, right? So what I will do, I'll tell you the standard ways of making it responsive. Okay. So now, this is what responsive design is. So when you open a website in desktop, laptop, tablet, phone, horizontal bar should not come and it should be responsive. It should look good. It should look uniform and no data should be lost. That is what I've added here. Responsive web design makes a web page look good on all screen size devices. Responsive web design uses only HTML and CSS. There is no involvement of JavaScript. You don't need JavaScript at all. Okay. So first, now next question comes, how you can make your website responsive. Okay. Just to give you all an idea, okay, this responsive design topic was introduced as a part of CSS3. Okay, just like in HTML, I covered HTML till HTML5, right? HTML5 was the latest version. Even in CSS3 is the latest version, which was introduced around 2000 and I would say 8. Around that it was introduced. So before that, we didn't have responsive design. Okay, because before that, we didn't even had iPads, we didn't even had these phones as well. Okay, it's very logical why we didn't had any responsive websites before CSS3, because there was no smartphone, there was no fixed, there was no site like I have to open in desktop, I have to open in phone, I have to open in tablet. So that time we had this Nokia phone, then BlackBerry came. Even that was not iPhone, that was also not smartphone. Okay, so वो भी smartphone नहीं था. So हमें इसमें क्या करना है? Since अभी तो हमारे पास इतनी सारी screen size device है, it's like unlimited. You can't pick every screen size. So we go with the standard values here. ठीक है. एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि तो जैसे कि CSS3 में इंट्रोड्यूस हुई, राइट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन. तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो टीम, उससे पहले अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम क्या करते थे, सिर्फ
एक ही स्क्रीन साइज के हिसाब से पूरी वेबसाइट बनाते थे। तो आप इमेजिन करो कि ना ही लैपटॉप था, ना ही टैबलेट था, ना ही फोन था CSS3 इंट्रोड्यूस में रिस्पॉन्सिव डिजाइन से पहले। ठीक है, ये तीनों चीजें तो थी नहीं। और जो डेस्कटॉप होते थे ना, वो भी लिमिटेड होते थे कि ये स्क्रीन साइज के ही आते हैं, बहुत लिमिटेड होते थे। अलग अलग कंपनीज के जरूर आते थे, बट दे वर वेरी लिमिटेड टू द स्क्रीन साइज। तो अब क्या है, उससे पहले इस टॉपिक की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि डिफरेंट स्क्रीन साइज डिवाइस नहीं होते थे। तो उससे पहले CSS3 से पहले जो वेबसाइट्स बनती थी, तो एक जैसे कि मैं अभी एक वेबसाइट बना रही हूँ, राइट? तो मेरी जो एक स्क्रीन मैं अभी देख रही हूँ, दैट माय लैपटॉप स्क्रीन इज 1400 पिक्सल विड्थ अप्रोक्सीमेटली अराउंड दैट। तो मैं सिर्फ इसी के लिए ही बना रही हूँ और इसी में ही यूज करने वाली हूँ। पहले ये होता था, क्योंकि स्क्रीन साइज आप खुद इमेजिन करो कि ये चीज, तीन डिवाइस तो है ही नहीं पहले। CSS3 से पहले ये तीन चीजें तो थी नहीं, सिर्फ डेस्कटॉप था, वो भी बहुत लिमिटेड स्क्रीन साइजेस होती थी। ठीक है, इसी वजह से रिस्पॉन्सिव डिजाइन की जरूरत ही नहीं हुई। तो जैसे जैसे स्मार्टफोन्स आते गए, जैसे जैसे आपके ये अलग अलग स्क्रीन साइज डिवाइसेस आती रही, आईपैड, आईफोन, टैबलेट्स, राइट? तो फिर अब जरूरत होगी रिस्पॉन्सिव डिजाइन की, इसलिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। कि अब ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप के लिए अलग वेबसाइट बनाऊंगी, मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बनाऊंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डोमेन तो एक ही होगी जिसपे आप इसको रजिस्टर करोगे, होस्ट करोगे, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, और वो ऐसे बनानी है कि किसी भी स्क्रीन साइज में मैं खोलूं तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, और हॉरिजॉन्टल बार ना आए, और कोई डेटा लॉस ना हो, कोई डेटा एक दूसरे के ऊपर से, एक कार्ड दूसरे के ऊपर ना हो, यूनिफॉर्म हो, क्लीन हो, कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये हमें समझ आ गया व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास ना व्यू पोर्ट आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले हमारे पास होता है व्यू पोर्ट। तो आप लोगों को ना बेसिकली हेड सेक्शन में एक लाइन ऐड करनी है, ये वाली। तो एनीवे जब आप HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ऐसे, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन आप लोगों को ऐड करनी है, ये वाली। ये व्यू पोर्ट क्या होता है? यूजर विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज, मतलब कि यूजर कौन हूं मैं, जो यूज कर रही है एप्लीकेशन। तो जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं किसी भी, तो जो भी मुझे एरिया दिख रहा है वहां पे विजिबल, तो जो भी मुझे वहां पे एरिया विजिबल दिख रहा है, एरिया विच इज विजिबल टू मी इन माय device, okay, when I'm opening a website, that is called viewport. For example, if I'm opening a site here, okay, so this is my screen size, my device, my screen size. So this is the viewport area, okay, the visible area to the user. This the term is called viewport. Viewport is user's visible area of a web page. So जितना भी area web page का user को दिख रहा है, that is called viewport. Now viewport varies with the device and will be smaller on mobile phone than on computer screen. तो अब ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली बात है, मोबाइल की स्क्रीन का साइज छोटा होता है, तो उसमें वेबसाइट एरिया कम दिखेगा। वही वेबसाइट आप कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल रहे हो तो आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट को मोबाइल फोन में खोल रहे हो तो उसका व्यू पोर्ट कम होगा, मतलब यूजर विजिबल एरिया कम होगा, क्योंकि वो छोटी स्क्रीन है। और कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल रहे हो तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बिफोर टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन, बिफोर ये टैबलेट्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से पहले वेब पेज वर डिजाइंड ओनली फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के लिए बनते थे, क्योंकि थे ही वही सिर्फ। एंड इट वाज कॉमन फॉर वेब पेज टू हैव स्टैटिक एंड अ फिक्स साइज। कल भी मैंने ये टर्म यूज करी थी, फिक्स साइज, जहाँ पे मैंने कहा था विड्थ, जब आप पिक्सल में लोगे उसको कहते हैं विड्थ, पिक्सल में ले रहे हो उसको फिक्स्ड साइज कहते हैं, स्टैटिक। ठीक है, और वो सिंपल रीजन है क्योंकि बहुत लिमिटेड स्क्रीन साइज होते थे, दो या तीन होते थे स्क्रीन साइज पहले हमारे पास कंप्यूटर, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम ही आता था। ब्रांड अलग थे बट कंप्यूटर सिस्टम की साइज सेम ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन आया, जैसे जैसे लैपटॉप आया, जैसे जैसे मोबाइल फोन आया, राइट, तब स्क्रीन का साइज बदलता गया। ठीक है, जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बदलता रहा तो नीड ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी इंट्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहले व्यू पोर्ट, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ओके। व्यू पोर्ट आप एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्सिव नहीं करते हो, व्यू पोर्ट आप बस ये बता देते हो कि जो जो आप बना रहे हो कोड, वो 1:1 होगा। सपोज मैंने किसी की वेट दे दी 10%, तो वो 10% ऑफ मोबाइल, 10% ऑफ लैपटॉप, 10% ऑफ जो भी आपका स्क्रीन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा।
तो आपको व्यू पोर्ट में सेट कर देना है कि जो विजिबल एरिया है वो इनिशियल स्केल 1.0 होगा, ठीक है। तो और एक और चीज, अगर आपने ये लाइन नहीं डाली, सपोज आपने वेबसाइट बना दी, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी बन गई, ठीक है, और आपने ये लाइन डालने आप भूल गए, सपोज करो, ठीक है, तो वो एक वैलिड वेबसाइट नहीं होगी, वो वेबसाइट वैलिड नहीं होगी। और अभी आपको सपोज पूरी वेबसाइट बनाने के बाद आपको याद आया कि मुझे ये लाइन भी डालनी थी, अगर आप अभी वापस डालोगे ना, आपकी वेबसाइट वापस से रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखना। तो जब भी आपको वेबसाइट बनानी है, बेसिकली आपको ये लाइन डालनी ही डालनी है, व्यू पोर्ट वाली, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू, फर्स्ट लाइन, ठीक है। सेकेंड है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। सो व्यूपोर्ट इज वन वे। व्यूपोर्ट सिर्फ तब इंट्रोड्यूस, व्यूपोर्ट का यूज ही तब था कि जब आपके फिक्स्ड और स्टैटिक डिजाइन होते थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के मेजरली दो ही तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मीडिया क्वेरी, तो टॉपिक है मीडिया क्वेरी, इट इज अ पार्ट ऑफ CSS3। सेकेंड है फ्रेमवर्क्स। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप का नाम सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप, सो हमारे पास ना थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे कि मुझे हेडर बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, बूटस्ट्रैप खोल देती हूँ यहाँ पे। सपोज मुझे एक कार्ड बनाना है, या मुझे कुछ हेडर बनाना है, राइट, या नेविगेशन बार बनाना है। देखो ये मुझे नैप बार बनाना है कुछ इस तरह से, ये वाला नैप बार, ठीक है। तो अगर आप फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं ना, जैसे बूटस्ट्रैप है, वी हैव मटेरियलाइज CSS, तो ये क्या होता है, ये कोड आपको बना के देता है। देखो इसमें CTL लिंक ऐड करते हो और आप ये कोड कॉपी पेस्ट कर देते हो पूरा, तो आपको ऐसा वो मिल जाएगा हेडर। आपको जो भी चीज चाहिए ना, आप यहाँ से बना दो। जैसे आपको ये कार्ड चाहिए, राइट, तो आप ये कोड कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर दो, और गेट स्टार्टेड से CTL लिंक कॉपी कर लो। तो ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्ड हो गया, सेक्शंस हो गए, अकॉर्डियन हो गया। अकॉर्डियन आप FAQ में यूज करते हो, ये है ना, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वेबसाइट में प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि इन्होंने क्लासेस और कंपोनेंट्स, जैसे क्लासेस के इन्होंने कहीं पे बना के रखी हुई है। इट्स लाइक अ कॉपी पेस्ट थिंग यू आर डूइंग, ठीक है। तो ये अगर आप फ्रेमवर्क्स यूज करते हो, ये ऑलरेडी अगर आप इंक्लूड करो तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही होगी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। अभी आप लोगों को मीडिया क्वेरी पे ध्यान देना है। ये वैसे एक वे है कि अगर आप फ्रेमवर्क्स यूज करो तो आप, एक वे है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाए, क्योंकि बेसिकली इन फ्रेमवर्क्स ने क्या किया है, मीडिया क्वेरी ही यूज करके पहले से ही कंपोनेंट्स बना के रख दिए। तो क्लासेस एलिमेंट्स पूरी लिख दी है HTML CSS, आपको सिर्फ वहां से कॉपी करके अपने कोड में ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे आपको जहाँ भी कार्ड चाहिए होगा आप कार्ड कॉपी कर लोगे, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा आप कोऑर्डिनेट कॉपी कर लोगे, वैसे, ठीक है। और उसके बाद उसमें कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, कलर्स की, CSS पार्ट। तो वो तो हो गया फ्रेमवर्क, वो तो इजी पार्ट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स है, वो आपका इजी पार्ट है। लेकिन वो फ्रेमवर्क्स भी क्या यूज कर रहे हैं, मीडिया क्वेरी। तो इफ इन इंटरव्यू दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड, हाउ कैन यू मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव? द आंसर इज वेरी सिंपल, मीडिया क्वेरी। If not media query, you can go with frameworks. Even if you look at Flex, okay, yesterday जब मैंने Flex बताया था, मैंने एक टर्म मेंशन की थी कि जो Flex है वो पहले से रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब आप Flex यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट एनीवेज रिस्पॉन्सिव होगी, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी क्या है, इज अ CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड इन CSS3. It uses the @ media rule to include a block of CSS properties only if a certain condition is true. तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कुछ कंडीशंस ऐड करोगे कि अगर स्क्रीन साइज ये है तो CSS ये दिखे, अगर स्क्रीन साइज कुछ और है तो कुछ और CSS दिखे। इट्स लाइक अ कंडीशन यू नीड टू ऐड, ठीक है। मैं ना पहले आप लोगों को मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स बता रही हूँ आज। सबसे पहले आपको सिंटेक्स बताती हूँ, वो कहाँ का यूज होता है, कैसे होता है। फिर जो ये निंडिजी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इन्होंने कैसे किस अप्रोच से इसको रिस्पॉन्सिव बनाया वो बताऊंगी। वो सेम अप्रोच सारी वेबसाइट्स में सिमिलरली यूज होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि वो एक्चुअली कैसे करना है। वो कोड आप फिर कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वो समझने के लिए भी आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। So there is one more question sometime asked, what is mobile first approach, ठीक है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट है वो मोबाइल डिजाइन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, बिफोर डिजाइनिंग फॉर लैपटॉप और एनी स्क्रीन साइज। तो इसका फायदा ये होगा, अगर आप सबसे पहले स्मॉलर स्क्रीन साइज के लिए उसको रिस्पॉन्सिव कर दोगे तो आपकी वेबसाइट जल्दी फास्ट लोड होगी स्मॉलर डिवाइसेस पे,
ठीक है. So mobile first means designing for mobile for before designing for desktop or any other device. This will make the page display faster on smaller devices. Okay. This means that we must make some changes in our CSS. तो हमें CSS में ही कुछ changes करने हैं based on some conditions. ठीक है. अभी सबसे पहला स्टेप है, मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले ये वाली लाइन आप लोगों को ऐड करनी है. ठीक है. अभी सपोज मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं जा रही, मैं बहुत बेसिक पहले आप लोगों को मीडिया क्वेरी के रूल्स बता देती हूँ कि कैसे होते हैं, कि आप लोगों को मीडिया क्वेरी प्रोवाइड क्या करता है. ठीक है. सपोज मैंने एक डिव बॉक्स बनाया, मैंने लिख दिया रिस्पॉन्सिव. ठीक है. मैंने यहाँ पे एक क्लास लगा दी डिव मीडिया, कुछ भी क्लास लगा दो डिव मीडिया. आई विल कॉपी दिस. ठीक है. अब ये जो डिव लगाया मैंने, यहाँ पे मैं CSS में ऐड कर दूंगी. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, मीडिया क्वेरी लगाऊंगी. ठीक है. मीडिया क्वेरी लगाने से पहले मैं इसकी कोई स्टैंडर्ड एक CSS दे देती हूँ. लेट्स से मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ येलो. ठीक है. लेट मी रन दिस साइड बाय साइड. तो आप देख सकते हो इस बैकग्राउंड कलर येलो है और हाइट होगी ये. ठीक है. आप लोग खुद देख सकते हो ये हाइट ये है और रिस्पॉन्सिव है ये. आई मीन रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट है, येलो कलर है और सिंपली यहाँ पे हाइट ये दे दी मैंने. ठीक है. अब क्या होगा, मीडिया क्वेरी क्या करनी है आप लोगों ने, सबसे एंड में लगानी है. जब जब CSS खत्म हो जाएगी ना सारी, अभी तो और भी CSS आएगी, जब भी CSS खत्म हो जाती है सबसे एंड में लगानी होती है. ऐसे लगाते हैं @मीडिया स्क्रीन. स्क्रीन मतलब हमारी डिवाइस क्या है, स्क्रीन. इसके अलावा ये प्रिंट भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है. एंड राउंड ब्रेस एंड कर्ली ब्रेस. ठीक है. इस राउंड ब्रेस में यू हैव टू पुट कंडीशन. अब क्या होगा, अब मेरी जैसे कि कितनी सारी स्क्रीन साइज डिवाइसेस है, राइट. अब 0 से लेके अब मैं अगर 2400 भी कंसिडर करूँ, कितनी सारी स्क्रीन साइजेस है, मतलब कोई लैपटॉप होगा, कोई मोबाइल होगा, कोई टैबलेट होगा. ठीक है. बहुत सारी है. तो मीडिया क्वेरी जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो इन्होंने हमें कोई स्टैंडर्ड रेंजेस दी थी. तो स्टैंडर्ड रेंज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको यूज यही करनी है. ये स्टैंडर्ड रेंजेस है जो इन्होंने दी थी, बिकॉज आपको कुछ तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए. तो जनरली जो मोबाइल स्क्रीन होती हैं, ठीक है, वो जनरली 400 पिक्सल के राउंड होती है, 0 से 400, मतलब लाइक मिनिमम इज 0 till 400. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख दो मोबाइल फोन्स के लिए मैक्स विड्थ. मैक्स विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ होगी 400. मतलब क्या होगा, ये क्या सिलेक्ट करेगा, मिनिमम विड्थ टिल 400 पिक्सल. मतलब जितनी भी मिनिमम, मिनिमम कितनी होगी, 0 ऑब्वियसली. तो मतलब जब आपकी स्क्रीन साइज 0 से लेके 400 पिक्सल के बीच में, जनरली मोबाइल फोन होता है इस साइज के, जैसे आईफोन हो गया मिनी. तो जब भी, तो ये बोल रहा है @मीडिया स्क्रीन. डिवाइस कौन सी है, स्क्रीन. एंड इज अ कंडीशन, मतलब एंड लाइक स्क्रीन इज अ कंडीशन एंड मैक्स विद दिस मींस सिलेक्ट ऑल द स्क्रीन साइज फ्रॉम 0, मिनिमम विड्थ 0 till 400 पिक्सल. तो जितनी भी स्क्रीन साइज, जब भी आपकी स्क्रीन साइज 0 से 400 के बीच में होगी, तो आप इसमें आप क्या करना चाहोगे, जो भी CSS ऐड करना चाहोगे. लाइक यहाँ पे आप उस क्लास सेलेक्ट कर लो डिव मीडिया. ठीक है. मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगी ब्लू. तो मतलब जब मेरी स्क्रीन साइज 0 से 400 के बीच में है, तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आती है @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल. ठीक है. अब मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल का मतलब है 600 पिक्सल एंड अबव. मतलब कि जब मेरी स्क्रीन का साइज मिनिमम मिनिमम 600 पिक्सल होगा एंड अबव, इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन साइज होगा, तो मैं डिव मीडिया का CSS बदल दूंगी. आपको जैसे बाहर CSS सेलेक्ट कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे कर दिया है. बस फर्क सिर्फ इतना, आपने कंडीशंस लगा दी स्क्रीन साइज की बेस पे. तो आप कर दोगे बैकग्राउंड कलर पर्पल. मतलब जब मेरी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल एंड अबव है, तो आप खुद भी देखो मेरी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल एंड अबव है, कलर पर्पल हो भी है. ठीक है. @मीडिया स्क्रीन एंड. तो जनरली यहाँ पे ना टैबलेट्स ये वाले साइज होते हैं, जब टैबलेट्स आते हैं या फिर लार्ज फोन आता है, जैसे सैमसंग का आता है ना फोल्ड फोन, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, वो वाले फोन आते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद 600 के बाद रेंज आती है 768 पिक्सल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, पर ऑब्वियसली आप कुछ भी बदल भी सकते हो। इसमें आती है मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल। ठीक है, कि जब मेरी स्क्रीन, अब क्या होगा, 0 से 400 ये है मैक्सिमम, मतलब 0 से 400 ये, मैं अब ये मिनिमम मतलब 600 पिक्सल एंड अबव। अब 600 पिक्सल अबव में मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी, 768 पिक्सल एंड अबव, मतलब 600 से लेके 767 तक ये स्टाइल रहेगा। 768 आते ही CSS बदल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया पिंक। तो आप देखो ये मैंने लिखा ना, सो यू चेंज CSS प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कंडीशन, तो कंडीशन ये है। ठीक है, अब ये मीडियम स्क्रीन साइज डिवाइसेस आते हैं, जैसे आपका आईपैड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है @मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 992 पिक्सल। ठीक है, अब क्या होगा, ये बोल रहा है 600 से 767 तक ये CSS होगी, 768 होते ही ये आ जाएगी। अब 768 से 991 तक ये CSS होगी, वो आते ही ये आ जाएगी। ठीक है, डॉट डिव मीडिया बैकग्राउंड कलर, लेट्स से दिस वन। ठीक है, और लास्टली हमारे पास होता है 12, मतलब ये स्टैंडर्ड है 12। ये जो मैं लिख रही हूँ, ऑब्वियसली आप इसको बदल भी सकते हो, मैं बदल के भी दिखाऊंगी। मिनिमम विड्थ मतलब 992 से 1200 पिक्सल से पहले तक। ठीक है, दैट इज 1199 पिक्सल तक, मतलब इसमें -1 कर लो, से लेके ये वाले CSS होगी। जैसी 1200 पिक्सल होगी मेरी स्क्रीन साइज, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा पेल ग्रीन। ठीक है, दैट्स इट। तो अब मैंने क्या किया था, एक बॉडी बनाया जिसमें स्टैंडर्ड बैकग्राउंड कलर ये लिख दिया। बैकग्राउंड येलो अब कब आएगा, तभी आएगा जब ये कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये कलर दे दिया मैंने। फिर मैंने कंडीशंस लगा दी कि जब स्क्रीन साइज 0 मिनिमम, मतलब मिनिमम 200, कुछ भी जो आप ले रहे हो, 0 लिख दिया, अभी 0 होगा इस केस में। 0 till 400, मतलब जब मैंने, तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद जब मेरा स्क्रीन साइज 6 मिनिमम, मतलब 600 पिक्सल एंड अबव, 600 पिक्सल से लेके 767 तक ये CSS आएगी। 768 आते ये CSS आ जाएगी उसी बॉक्स पे। फिर 992 आते ये CSS आ जाएगी, और 1200 से ऊपर ये आएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीन साइज डिवाइसेस। अब मैं इस पे जाऊंगी स्पेक पे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था जब आप खोलोगे ऐसे लगेगा, फिर आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप स्क्रीन साइज सेलेक्ट कर लो। आईफोन SE में देखो ब्लू कलर आ रहा है, खुद देखो ब्लू कलर ही है, मतलब आईफोन SE क्या है, आप खुद यहाँ से भी देख सकते हो। 375 पिक्सल है वेट, मैंने क्या दिया 400, मतलब 0 से 400 के बीच में आ रहा है 375, तो इसलिए ये है। पिक्सल 7 येलो आ रहा है। अब देखो विड्थ कितनी है, 412, विड्थ है 412। अब देखो 412 पे कोई कंडीशन नहीं है, ये 0 से 400 था और ये 600 एंड अबव है। अब 400 से लेके 600 के बीच में कुछ नहीं दिया मैंने कंडीशन, तो स्टैंडर्ड CSS आ गई येलो कलर। ठीक है, अब मैं इसको ले जाऊंगी। देखो आईपैड एयर है 820 यहाँ पे आ रहा है, इस पे 768 पिक्सल से इसके बीच में, तो वो आ गया पिंक, यू कैन सी। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव पे ले जाओगे तो आप ऐसे ऐसे स्क्रीन साइज करके भी बदल के देख सकते हो। ठीक है, अब देखो अब क्या था, 768 पे पिंक हो रहा है, तो मैं लिख दूंगी 768 पिंक हो जाएगा। ठीक है, अब 767 करूंगी ना, तो पर्पल हो जाएगा, क्योंकि देखो 600 एंड अबव से मैंने लिखा है पर्पल, तो मतलब 760 पे ये पिंक कलर होगा, उससे पहले ये पर्पल रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेंज इन्होंने हमें दी है जस्ट टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको 992 की जगह 998 पे कुछ चेंज है तो 998 कर दो। आपको एक और ऐड करनी है, ठीक है, आपको एक और कंडीशन ऐड करनी है 2000 पिक्सल्स पे। ठीक है, तो आप वो ऐड कर दो, बैकग्राउंड कलर लेट से ग्रीन कर दो। आप कर सकते हो ये सारे चेंजेस, कि जब 1200 पिक्सल से 1999 तक ये CSS रहेगी, 2000 पिक्सल पे ग्रीन हो जाएगा, आप खुद देखो।
2000 पिक्सल पे ग्रीन हो गया, और 1999 तक पेल ग्रीन है। ठीक है, तो अब आप अपनी मर्जी, ये सिर्फ इन्होंने स्टैंडर्ड दिया है जस्ट टू गेट स्टार्टेड, वरना आप अपनी मर्जी के रेंजेस भी लगा सकते हो। तो क्या है, कंडीशन के बेस पे सीएसएस बदल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सपोज मेरे पास एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, लेट्स से हेलो वर्ड लिख दिया मैंने सिंपल। अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, स्टाइल इज इक्वल टू, सॉरी, आईडी इज इक्वल टू स्टाइल पी। ठीक है, आई विल कॉपी दिस, आईडी इज हैश। तो मैंने कहा था ना सारी सीएसएस ऊपर ही लिखना। ठीक है, मीडिया क्वेरी बिल्कुल एंड में लिखते हैं, यहाँ पे आएगी इसके बाद। तो अब आप देखना, मैंने इसका फॉन्ट साइज क्या कर दिया, स्टैंडर्ड 20 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अब मुझे पता है जब यही पी टैग में अगर मोबाइल डिजाइन में देख रही हूँ तो इसका फॉन्ट साइज कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसी ब्लॉक में, जब स्क्रीन साइज 0 से 400 होगा तो मैं इसको कर दूंगी स्क्रीन साइज, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल या 14 पिक्सल। ठीक है, कि वैसे 20 पिक्सल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन साइज कम होगा हेलो वर्ल्ड का, वेबसाइट का 400 से नीचे जाएगा, ये 14 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे हूँ लेट्स से, तो मैं स्क्रीन से इसका कर दूंगी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। तब कुछ भी सीएसएस प्रॉपर्टी बदल सकते हो, मैं ये बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो भी ये 20 है, अब स्क्रीन ये स्मॉल हो गया साइज हेलो वर्ल्ड का, अब देखो बड़ा हो गया। ठीक है, तो कुछ भी सीएसएस मैनिपुलेट कर सकते हो आप बेस्ड ऑन कंडीशंस, कुछ भी कलर, कोई भी प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये कंडीशंस की तरह एक्ट करता है। आपको इमेज का साइज बदलना है, आपको कोई चीज हाइड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको नाम बॉक्स ही दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस डिव पे एक आईडी लगाऊंगी मैं, बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी लगा दी बॉक्स, मुझे इस पे सीएसएस लगानी है। मैं लेट से हाइट लगा देती हूँ 200 पिक्सल, विड्थ लगा देती हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, बॉक्स, सॉरी, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड टील। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस, इसको सर्कल बना रही हूँ मैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50%। अब देखो ये ऐसे आ गया, ये बॉक्स आ गया। ठीक है, एक सेकंड, टेक्स्ट को हटा देती हूँ मैं, टेक्स्ट की जरूरत नहीं है इस केस में। अब मुझे क्या करना है, जब मैं मोबाइल डिजाइन में जाऊंगी मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इस बॉक्स आईडी को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इस बॉक्स आईडी को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं इसको आईडी कर दूंगी। ठीक है, इसको सिंपली मैं यहाँ पे जाके कर दूंगी हैश ऐसे। ठीक है, और मैं कर दूंगी डिस्प्ले नन, दैट्स इट, डिस्प्ले नन। अब क्या होगा जब मैं मोबाइल डिजाइन में जाऊंगी, अब देखना, ये देखो बॉक्स ही नहीं आएगा, 400 से नीचे जाऊंगी, देखो हट गया। कैन यू ऑल सी, जब मैं 400 यहाँ लगाया मैंने, कि जब आप 0 से 400 के बीच में हो, 0 से 400 के बीच में नहीं आ रहा, इवन 399 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, 400 पे नहीं आएगा, जैसे ही 401 होगा बॉक्स आ जाएगा, ये सर्कल। तो आप हाइड भी कर सकते हो, कुछ भी हाइड भी कर सकते हो। क्लियर, जस्ट टेक अ लुक एट द कोड, जस्ट टेक 2 मिनट्स। ठीक है, आप लोग इसको एक बार कोड को देखो, फिर मैं आप लोगों को, ये बेसिकली आपको ये समझना आ जाना चाहिए कि मीडिया क्वेरी कैसे लिखना है। मिनिमम मैक्स विड्थ, इसके हाइट भी लगा सकते हो बट मेजर कंडीशंस विड्थ पे होती है। ठीक है, और ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, हमें कंडीशन की बेस पे हम सीएसएस बदल रहे हैं, कंडीशंस के बेस पे सीएसएस बदल रहे हैं। एक्चुअली ये कर क्या रहा है, कंडीशन के बेस पे सीएसएस बदल रहा है। ठीक है, आप लोग जस्ट टेक 2 मिनट्स, टेक अ लुक एट द कोड।
क्लियर, ये क्लियर है सबको कि आपने कंडीशन के बेस पे सीएसएस बदली है? नहीं नहीं, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। मतलब अभी क्या है, मैं सिर्फ अभी सपोज मैंने यहाँ पे ना इतने सारे ये वाले लिए हैं, ये स्टैंडर्ड ना गिवन है, तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि पूछे तो स्टैंडर्ड ही है, इतने सारे हमें नहीं लगाने होते। मैं आपको बताऊंगी, मैं अभी आप लोगों को मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगी, उस पे पूरी वेबसाइट ही रिस्पॉन्सिव बन जाएगी आपकी। बस वो फॉलो, हर बारी वही फॉलो करना है। हम फ्लेक्स यूज करके करेंगे प्रॉपरली से रिस्पॉन्सिव। मतलब हम लोग ऐसे कभी रिस्पॉन्स, मतलब जब हम रिस्पॉन्सिव बनाना शुरू करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक डिव को पकड़ा और उसको रिस्पॉन्सिव बनाने लग गए। हमें पूरी वेबसाइट को पहले से ही स्ट्रक्चर और इमेजिन करना पड़ता है, फिर हम उसको डेवलप करके करते हैं। क्योंकि जो रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट है ना, वो एक्चुअली एचटीएमएल लिखने से पहले आपको डिसाइड करना होता है। हम ये टॉपिक आई नो हम पढ़ते हैं एंड में, बट जब आपको एचटीएमएल लिखनी है, आपको उससे पहले ही इसको रिस्पॉन्सिव करने का देखना होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो वाला पार्ट बताऊंगी कि इसको एक्चुअली रिस्पॉन्सिव करना कैसे है। ठीक है, और इतने सारे ब्रेक पॉइंट, ये मतलब नॉट ब्रेक पॉइंट, इतने सारे जो पॉइंट्स डालिए हैं, इतने सारे जरूरत नहीं होते। ठीक है, मेजरली मैं बताती हूँ, एक आपका ब्रेक पॉइंट हमेशा लगे। ओके, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल फर्स्ट। ठीक है, मैं सेपरेट फाइल्स क्रिएट कर रही हूँ इसी में। ठीक है, न्यू इंडेक्स, इंडेक्स, और यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड या फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम आप लोगों को जो रेफर करना है वो ये एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल वाली फाइल हुई। ठीक है, तो जब भी आपको फिर इस वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी है, जो मैं भी आपको बताऊंगी सबको तरीका, आपको यही फॉलो करना है। इसी की मैं एग्जाम्पल डॉट वो बना रही हूँ। ठीक ठीक है, ताकि आप लोग जब रिवाइज करो कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल में एग्जाम्पल डॉट सीएसएस का लिंकिंग करके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट सीएसएस। अब क्या करना है, वेबसाइट मैंने आप लोगों को कहा था। ठीक है, अब जो मैं बता रही हूँ ना, यही सेम फॉलो करना है आपको वेबसाइट प्रॉपर बनाने में। जस्ट लिसन। तो सबसे पहले तो सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गए आपके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स लिख दूंगी। तो जब भी वेबसाइट बनानी है ऐसे ही स्टार्ट करनी, हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन। ठीक है, अभी सपोज आपका हेडर है, तो आप हेडर में डाल दो, नैव है तो नैव डाल दो उस पर। ठीक है, तो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया। अभी सपोज मुझे बनाना है सेक्शन, पकड़ लो आप, अमेज़न खोल लेती हूँ यहाँ पे, लेट्स से, या फिर इस सेक्शन को पकड़ लेते हैं। ये एक सेक्शन है, आपको एक एक सेक्शन के हिसाब से जाना है। ठीक है, अब आपको ये सेक्शन बनाना है। अब आपको पता है यहाँ पे एक हेडिंग टैग आएगा, और यहाँ पे एक बॉक्स आएगा एक, और यहाँ पे दो दो बॉक्स है। एक चीज याद रखना, जब भी आपको रिस्पॉन्सिव बनानी है वेबसाइट, तो आपको क्या करना है, अगर दो बॉक्सेस लैपटॉप में है, तो जब स्मॉल स्क्रीन साइज है तो वो 2 से 1 हो जाएंगे। अगर 4 है तो 4 से 2, 2 से 1। ठीक है, इसको कॉलम लेआउट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको यही फॉलो करना है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ 4 बॉक्स लेके। ठीक है, तो फ्लेक्स यूज करेंगे हम यहाँ पे। लेट मी रन दिस साइड बाय साइड। तो अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, एक सेक्शन, एक ही सेक्शन बना रही हूँ। इस सेक्शन के अंदर मुझे अब 4 बॉक्स चाहिए। लेट्स से मुझे ऐसे 4 बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो 1 2 3 4 बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, तो मैं कितने डिव बनाऊंगी, कल ही बताया था, हम फ्लेक्स यूज करेंगे, फ्लेक्स ही यूज करना है यहाँ पे। अब पहले वाले में अभी मैं 1 2 3 डाल रही हूँ, कंटेंट बाद में डालते हैं। ठीक है, अभी 1 2 3 4 डाल रही हूँ। मैंने कहा था इन चारों को किस में रैप करना है, एक पेरेंट में, तो क्लास लगा दूंगी यहाँ, फ्लेक्स कंटेनर। इसको कॉपी करेंगे सीएसएस फाइल में जाके, मैं सिंपली लिख दूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट, लेट्स स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब क्या हो, इन 3 बॉक्सेस कितने हैं ये, कितने बॉक्सेस है टीम, 4 बॉक्सेस है। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे को इन बॉक्सेस की विड्थ सेट करनी हो तो कितनी करूं मैं,
मुझे इन तीनों बॉक्सेस की विड्थ सेट करनी है तो कितनी करूँ? ये जो 4 बॉक्सेस है इनकी विड्थ अगर मुझे सेट करनी है तो कितनी करनी चाहिए? एक रो में मुझे 4 बॉक्सेस फिट करने हैं तो बॉक्सेस की विड्थ की यस यस या बोथ आर करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर पे जाएंगे। ठीक है, ये तो वैसे इजी था, 4 से डिवाइड करना है। 100 डिवाइड बाय जितने भी बॉक्सेस है 4, 25% आ गया। 25% डाल दो। अब मैंने आप लोगों को इसमें कहा था थोड़ा सा प्लस माइनस मतलब माइनस कर लेना, क्योंकि जो स्पेसिंग नहीं आएगी वरना बॉक्सेस। ठीक है, तो आप देखोगे ये ऐसे आ गए 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हम कुछ बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दिस वन। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ी सी हाइट ऐड कर देते हैं, लेट्स से 150 पिक्सल। तो ये ऐसे आ गए। ये 4 बॉक्सेस प्रॉपरली आ गए हैं ऐसे। इतना पार्ट तो मैंने कल ही पढ़ाया था, ये वाला जो पार्ट अभी तक बनाया है ये मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, तो कल वाला ही हो गया। अब नेक्स्ट इसमें मीडिया क्वेरी ऐड करनी है। ठीक है, तो अब कोई भी, आप मैंने कल भी आपको ये आप लोगों को बात बताई थी, कोई भी लेआउट देखोगे, कोई भी वेबसाइट देखोगे, स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगा। देखने में बॉर्डर शायद ना मिले, बॉर्डर हटा देती हूँ, चलो बॉर्डर शायद ना मिले आपको। ठीक है, बट यहाँ पे भी अगर देखो तो ये 2 बॉक्सेस ही है, कल भी बताया था, ये भी 2 डिविजन है, ये 3 बॉक्सेस है। ठीक है, ये भी 1 2 डिविजन है, कितने कॉलम में डिवाइडेड है वो आपको नोटिस करना है। ये भी जैसे 1 2 3 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है, राइट। तो बात यहाँ पे कॉलम्स की हो रही है कि कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो ये 4 में है। तो आप कोई भी सेक्शन अब आप उठा के देख लो, आप लोग अब आप लोग आराम से अमेजोन जैसी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, कल जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी ना, बस उसमें आपको उस इमेज की जगह ये वाली इमेज ऐड कर देनी है, बिल्कुल सेम बन जाएगा। अगर आप पूरी वेबसाइट को देखो, ये भी तो 4 बॉक्सेस प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर है, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो पूरा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमारे पास, अब ये लेट्स से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब नेक्स्ट इसमें है मीडिया क्वेरी लगानी है। तो जब भी 4 बॉक्सेस होंगे ना, तो स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम लेआउट फॉलो करते हैं। ठीक है, जहां पे अगर 4 कॉलम्स में डिवीजन होगी, ठीक है 4 कॉलम्स में, तो हम जाते हैं 4 से 2 2 से 1। ठीक है, अगर 6 होती तो 6 से 3 3 से 1। अगर 3 होते तो 3 से 3 वाले जब होते हैं डायरेक्टली 1 पे जाते हैं। ठीक है, 8 होती तो फिर से वही 4 फिर 2 और फिर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कब करने हैं, मतलब 4 से 2 कॉलम्स में इसको कब डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम जनरली जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड, तो जनरली जब आपका मोबाइल डिवाइस होता है ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली होता है, आई वुड से 500 या 450 पिक्सल के राउंड ले लेते हैं। आई नो मैंने आप लोगों को इससे पहले 400 बताया था, बट अप्रोक्सीमेटली 450 के राउंड, कि जब मेरी स्क्रीन साइज मीडिया, ठीक है, एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 400 पिक्सल। ठीक है, तो ये स्क्रीन साइज, तब हम 450 ले लेते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम पे लेंगे, मतलब एक रो में एक कॉलम वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब अप्रोक्सीमेटली हम एक स्क्रीन साइज लेते हैं आईपैड वाला। ठीक है, कि जब मेरी स्क्रीन साइज आईपैड वाले उसमें होगी, आईपैड टैबलेट वाली या सैमसंग फोल्ड वाला फोन हो गया, अप्रोक्सीमेटली आपके सेकंड वैल्यू हमेशा आपको 800 850 900 के अराउंड मिलेगी। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, सिर्फ 4 कॉलम से 2 कॉलम लेकर आना है, 2 कॉलम से 1। तो मुझे क्या चेंज करनी है, विड्थ बेसिक। ठीक है, तब मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स, मतलब जब स्क्रीन साइज 0 से 450 पिक्सल होगा, 0 से 450 पिक्सल। ठीक है, 0 टिल 450 पिक्सल, तो मुझे क्या है, एक रो में एक ही कॉलम है, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, डॉट फ्लेक्स कंटेनर डिव, आई विल चेंज विड्थ टू, अब मुझे क्या करना है, एक रो में 2 ही चाहिए बॉक्सेस, तो मैं कर दूंगी 50%। ठीक है, अब 50% में मैं सब इसमें थोड़े से प्लस माइनस कर देती हूँ, बिकॉज वी नीड सम स्पेसिंग।
तो लेट्स से मैंने 48 कर दिया। ठीक है? और जब मैं जा रही हूँ इस स्क्रीन साइज पे, ठीक है, जब मैं इस स्क्रीन साइज पे जा रही हूँ तो मैं कर दूंगी विड्थ 100%, मतलब एक रो में एक ही कॉलम, सॉरी सॉरी, दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 40। ओके, तो ये वाला हो गया जब आपकी स्क्रीन साइज बिल्कुल ही 450 से नीचे है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक कॉलम, एक रो में एक कॉलम। और जब 900 से पहले है, ठीक है, मतलब 450 से 900 के बीच में, तब ये वाली आ जाएगी, एक रो में दो कॉलम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, फ्लेक्स रैप रैप। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि फ्लेक्स रैप रैप तभी वर्क करता है जब विड्थ स्टैक सीड करी हो, नेक्स्ट रो में सिर्फ तभी जाएगा जब फ्लेक्स रैप रैप लगा होगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं स्क्रीन साइज कम करूंगी तो आप खुद देख सकते हो, ये 4 है, ये 2 जा रहा है, और फिर ये 1 सेकेंड। नाउ यू कैन सी इट इज 4, इट इज 2 एंड इट इज 1। इसमें मैं बॉर्डर अनकमेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिविजन दिखे। देखो, ये 4 थे, जैसे ही स्क्रीन साइज 900 से नीचे आया तो देखो ये 2 हो गए, और जैसे ही 450 से नीचे आएगा ये 1 हो जाएगा। तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई। ठीक है? कोई हॉरिजॉन्टल बार ऐड नहीं हो रहा, कंटेंट प्रॉपर्ली क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये अलाई आइटम्स ये सब डाल सकते हो। जब आप 100 पिक्सल पे जा रहे हो, राइट, तो आप इसमें अलाई आइटम्स डाल सकते हो, मतलब ये स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। ये वाली मैंने बताया था ना कि कल अलाइ कंटेंट से प्रॉपर्टी ऐड होती है, जस्टिफाई कंटेंट ये स्पेस ऐड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी सिंपली आप जस्ट अलाइन कंटेंट डाल सकते हो। तो एक ब्रेक पॉइंट हमेशा 450 के राउंड लगेगा, और एक ब्रेक पॉइंट हमेशा 900 के राउंड लगेगा हमेशा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों होते हैं। अब सिमिलरली एक और डिजाइन बनाती हूँ मैं। अगर 3 होते, ठीक है, एक नया सेक्शन बना रही हूँ मैं, लेट्स से क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, अगर 3 होते कॉलम्स, 1 2 3, ठीक है, तो मैं क्लास को कॉपी करूंगी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अगेन मीडिया क्वेरी सबसे एंड में हो गया, फिर यहीं पे ऐड करनी है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये सारा सेम आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला सीएसएस और ये वाला सीएसएस बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती थी, कॉमा डॉट कंटेनर। ठीक है, अब आप लोग देखो, मेरे को ये वाली सीएसएस सेम कंटेनर, कंटेनर में सेम ही लगानी है, चेंजेस मैं विड्थ में करूंगी। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते थे, कॉमा ये लगा सकते थे, तो ग्रुप सेलेक्टर यूज हो गया। ठीक है, ये वाला चीज में चेंज कर दूंगी, डॉट कंटेनर और डिप, इनकी विड्थ अब 100/3 करना है। ठीक है, क्योंकि 3 बॉक्सेस है, तो 100/3 33.3 आता है। मैं 32 विड्थ ले लूँ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बाकी बॉर्डर कलर सब सेम ही कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। अब क्या है कि 3 जब बॉक्सेस होते हैं टीम, did I miss something? Snowflakes. Just 1 second. I don't know why 3 boxes are not coming.
Okay, now it's coming. Okay, so now you can see 3 boxes are coming. So what I've done this time, I have a case of 3 boxes. 3 boxes case is this one. Okay, 1, 2, 3. So now what I want, when you reduce the screen size, you will go from 3 to 1. Okay. So that means approximately when I will be in my mobile screen size device, I will just write dot flex container div. I will just write width 100%. That's it. Okay. So in this case, you will see. So the above one will work 4 to 2, 2 to 1. That will work. But here, this one we will reduce once we go below 450. See, it will come. Did I? Sorry, container. So now you can see it is also come. Okay, you can see your website is proper, like super clean now. No horizontal bar, nothing wrong. Now content, you can put anything inside this. You want images, put images inside this. Okay, but this is the standard. If now just like reduce, if it's 4, you go from 4 to 2, 2 to 1. If it's 6, so approximately at 900 you go 2, and approximately at 450 you go 1. Here, this is the standard you will give. Okay, 3 you will go one approximately when you are at 900 around, and this is 450. Okay, again, I'm not saying this is fixed. It can change to 468, 500 also, but approximately like plus 50 plus minus 50 range could be there, but it will be around this much. That is for sure. Okay, now if it is 8, okay, for example, in this case, it's 8, then 4 you can bring at approximately 900. Then 2 you can bring approximately at 600, and 1 below 400. Okay. So that is how you can create. So this is fixed like 4 to 2, 2 to 1, 3 to 1. And if you open any website, you will find the same thing. Let me open it in Edge. Okay. You will see the same thing here. So this is what heading. These 2 box, if I reduce the screen size, it is going from 2 columns to 1 column. See? Forward 15 years. Okay. Again, these are 3. It will go from it's a like a they have done JavaScript coding there, so you can ignore that. But this one you can see 2 to 1. See, it is coming here also. Okay, this is how it will. क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? तो मैं यही वो स्टैंडर्ड बता रही थी, आप लोग हर वक्त यूज कर सकते हो. अब ये चीज करने के बहुत तरीके, तो मैंने फ्लेक्स बताया ना, वैसे जैसे और टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे फ्लोट होता है, पोजीशन, ऐसे पोजीशन है, फ्लोट, ऐसे से बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको कल बताया था फ्लेक्स लेटेस्ट और वो हम यूज करते हैं, तो उसमें ये वाला पार्ट भी इजियर हो जाता है. ये वाला क्लियर हो गया सबको? ये कॉलम वाला कि आपको जब 4 कॉलम्स में डिवीजन, तो 2 से 1 में जाना है, एंड सो ऑन. ठीक है, अब कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया. ठीक है, हमें ये भी देखना है इमेजेस को कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, तो अब हम कुछ कंटेंट डालते हैं इनके अंदर. लेट्स से हेडिंग टू हेलो, एंड आई विल ऐड वन इमेज टू इट. अभी मैं सब में एक सेम ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. अब जो मैंने कल आप लोगों को हो दिया था ना असाइनमेंट, अब उसमें रिस्पॉन्सिव पार्ट ऐड कर सकते हो. मैंने उसमें इमेजेस जो कल प्रोवाइड कराई थी असाइनमेंट में, 6 इमेजेस थी उसमें, और 6 प्रोडक्ट्स थे. कल जो ये वाली असाइनमेंट दी थी ना, इसमें 6 थी. तो आप क्या करोगे, 6 से 3 पे जाओगे और 3 से 1 पे जाओगे, तो अब ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. ऑलराइट, तो अभी मैंने क्या किया, इन सब में कुछ कंटेंट ऐड कर दिया. ठीक है, ऑब्वियसली नहीं ठीक लग रहा, क्योंकि हेलो तो सही आ रहा है इमेज, लेकिन देखो ठीक नहीं आ रही, क्योंकि इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है. अब इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए टीम, हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी. ठीक है, तो मैं इमेज को किससे सिलेक्ट कर सकती हूँ, इस क्लास से, क्योंकि इसका डिसेंडेंट है. तो मैं लिखूंगी डॉट डॉट फ्लेक्स कंटेनर स्पेस इमेज. ठीक है, तो मैं यहाँ डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज कर रही हूँ, देखो, क्योंकि ये इस सेक्शन का ही पार्ट है इमेज, तो डिसेंडेंट के थ्रू सिलेक्ट करो. हम लोग इसकी विड्थ पता है क्या कर देंगे, 100%. ठीक है, और हाइट भी कर देंगे 100%.
width have set. Okay. So now what I need to do is I need to increase the height of this container because like to make a image responsive, just give width 100% and height auto. That's it. You for image, we don't make much changes. Width 100% means, so here what will it will be like, let's say if I give this 100%, this image is 100% width. So 100% means it will take 100% width of this div container. So this, as you all know, right, image is an inline element and inline elements take space according to the parent. So now when you give 100% width to this image, it will take 100% of its parent container. Who is the parent of this image? Div tag. So you can see the amount of width div has, that is the same amount of width image has. Okay, then later you can go and put padding to it. Okay, if you want like space like this one around it, you need some space, just put padding to it. Okay, like if you're creating this part, you can put padding here. Okay, but image you like give width of image also in percentage. Same goes for videos. Image width has to be in percentage, and whatever percentage you will give, it will take that percentage of the parent. So whatever will be the width of div, that will be the width of image. Image is inline element, so that's why it's giving you 100%. Okay, and height we keep auto. Okay, and when I say auto, so what you can do is you can increase the height of the container. Okay, so this is how it will look now. I think this image is quite big. Yeah, so now you can see. Okay, so this is how it will come. Now you can put padding here, and before you put padding, make sure you add box sizing border box. Okay, don't forget that. You can put box sizing border box. You can put margin 0 initially, padding 0 initially. Okay, this is how it will look. Clear? You can put any content inside it. So the main idea is when you're making it responsive, just remember the structure. Always make the outer structure responsive. Now you just need to put content that you can add and change accordingly. So the main idea is, like I mentioned, before you develop a website, you have to imagine these things. That imagination is this much. In a section, the number of boxes you're going to create, and later on how much you're going to go from. Like if it's 4, then 2, then 1. If it's 6, then 3 and 1. If it's 3, then 1. Okay, that's why I said. Now the outer structure is responsive. If I reduce the screen size, you can see like the idea of giving percentages, because when you reduce the screen size, whatever is the width of your div, accordingly it will take the width percentage. Okay, so your website will remain responsive. Clear? ये part clear है सबको? कोई doubt? नाउ अब इसके अलावा आप लोगों की लाइक नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देती हूँ. ये वाला कोड तो आप हैंडी रखना हमेशा. ये वाला जो है ना, ये वाला कोड हमेशा हैंडी रखना. और ये एग्जांपल वाला जो मैंने बताया, ठीक है. अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ना जैसे स्क्रीन की जगह प्रिंट हो सकता है. प्रिंट का मतलब होता है जब आप प्रिंट करने के लिए कुछ डिजाइन बना रहे हो. जैसे कि कितनी कंपनीज, जैसे ना एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो लोगो है वो HTML और CSS से बना हुआ है. तो फिर उन्होंने उसको वो प्रिंट मीडिया के लिए था. और प्रिंट आप ऐसे मान सकते हो, जब आप लोग गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो तो आप लोगों के पास प्रिंट का ऑप्शन आता है. यू गाइस नो, जब आप गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो, PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपको ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन आता है. तो वो जो वेबसाइट में आप डॉक्यूमेंट देखते हो वो प्रिंट मीडिया होता है. ठीक है, तो वहां पे हम प्रिंट यूज कर सकते हैं. प्रिंट होता है, स्क्रीन होता है, ऑल होता है. ठीक है, इसको लाइक @media rule
द डिवाइस कंडीशन, आई मीन ऑपरेटर लाइक एंड और, इसको और भी लिख सकते हैं। और का मतलब होता है या तो वो या तो स्क्रीन होगा या फिर वो, बट एंड यूज करना आपको यहाँ। ये जो आपने मेरी कंडीशन लगाई है विड्थ की जगह साथ साथ एंड हाइट पे भी लग सकती थी, ठीक है, ये हाइट पे भी लग सकती है। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिव पार्ट इज। रिस्पॉन्सिव में वैसे मतलब जैसे कि मैंने फ्लेक्स के थ्रू बताया, फ्लेक्स बनाया, फिर मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड बता दिया। वैसे इसमें एक वो भी होता है, जैसे पोजीशन का मैं अगर बात करूं, या फिर फ्लोट एक होता है। फ्लोट की अगर मैं बात करूं, फ्लोट होता है एक रो में मल्टीपल कंटेंट को फ्लोट कराना। जैसे ये एक 3 रो में लाई हूं मैं फ्लेक्स से, पहले फ्लोट यूज करते थे, तो वहां पे फिर आपको फिर सेम ही होता है, बस विड्थ मैन्युअली सेट करनी पड़ती है, ठीक है। एक लास्ट चीज और, आप ना आप लोगों को मैंने हेडर बनाना सिखाया था, राइट? आई थिंक इस लेक्चर में, हाँ। मैं ये हेडर का कोड कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। एक चीज बतानी है क्योंकि मुझे, आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट हियर। ये मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ये नेविगेशन बार वाला टॉपिक, ठीक है। तो नेविगेशन बार कुछ इस तरह दिखेगा आपका, देखो, होम और कॉन्टैक्ट एंड अबाउट, ठीक है। इसको थोड़ी चेंजेस कर देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, कुछ और पर्पस, और इसमें कलर ब्राउन, और बॉर्डर मार्जिन बॉर्डर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का ये नेविगेशन बार। अब ना कभी कभी आप देखोगे, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो, ये आपको फिक्स्ड दिख रहा है, राइट? ये ऊपर वाली चीज फिक्स दिख रही है, वैसे ही आप इसको देखोगे आपको फिक्स दिख रहा है, ये ऊपर वाला फिक्स्ड है। तो इसके लिए ना पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आपको इसी में जिसको भी फिक्स्ड रखना है, ठीक है, तो उसी में उसको कर दो पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, और टॉप कर दो 0। तो नाउ यू कैन सी, तो मैंने क्या किया, आपको ये 3 चीजें ऐड करनी। तो आप लोग कभी कभी देखोगे, आप अपनी वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो हाँ, देखो आप अपनी वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहे हो, देखो ये फिक्स्ड है हेडर। वो कैसे बना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, फिक्स्ड है ये, और यहाँ पे भी ये हेडर देखोगे फिक्स्ड है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो पोजीशन बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट डालते हो उस सबकी पोजीशन स्टैटिक होती है। मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे भी इस हेडर वाले पार्ट को पोजीशन फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। टॉप 0, अगर टॉप 0 ना भी लिखो तो क्या, बेसिकली आपको इसको टॉप 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए टॉप 0 लिखा मैंने, और विड्थ इसकी 100% कर देना। तो ये देखो, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो टू गेट स्टार्ट फिक्स्ड हेडर, या आप स्टिकी हेडर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। आप अपना मार्जिन बॉटम भी बढ़ा सकते हो। तो ये ऐसे यूज होता है, जो यहाँ पे बना हुआ है ना, और यहाँ पे, तो वैसा यहाँ बन गया, ठीक है, ऐसे। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। क्लियर, ये क्लियर है सबको फिक्स्ड वाला पार्ट? ठीक है। अब इसके अलावा ना दो टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है। मैं टर्मिनोलॉजीज बोलूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग मुझे बताना पिक्सल कौन सा परसेंटेज, ठीक है। मैं पहले टर्म्स बोलती हूँ। एक मेरे पास टर्म है फिक्स्ड लेआउट, एक मेरे पास है अडेप्टिव लेआउट, ठीक है। फिक्स लेआउट वो हो गया जब आप, जो आप फिक्स स्क्रीन साइज के लिए बनाते हो, जब मैं स्क्रीन का साइज कम भी कर दूं, ठीक है, तो वो डिव की जो भी विड्थ है वो सेम रहेगी, ठीक है। अडेप्टिव लेआउट हो गया कि मैं स्क्रीन साइज कम करूं ज्यादा करूं, जो जिस भी यूनिट में मैं वैल्यू दूंगी वो उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ लेगा,
ठीक है, तो मुझे बताओ फिक्स लेआउट के लिए पिक्सल होगा या परसेंटेज, अडेप्टिव के लिए परसेंटेज होगा या पिक्सल होगा? कौन सी यूनिट किसके लिए हुई? फिक्स्ड के लिए कौन सा यूनिट और अडेप्टिव के लिए कौन सा यूनिट? ये टीम, मेरे पास एक फिक्स लेआउट है जो ये बोलता है, जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि फिक्स लेआउट वो हो गया कि यस, दैट्स करेक्ट। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया कि जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो उसको अडेप्टिव लेआउट की अप्रोच कर रहे हो। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं फिक्स लेआउट क्या होता है, अडेप्टिव। अडेप्टिव है ये रिस्पॉन्सिव वाला, कि जब आपकी स्क्रीन साइज कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो रहा है, और उसका सिंपल रीजन है परसेंटेज। ऑब्वियसली आप मीडिया क्वेरी यूज कर रहे हो, बट परसेंटेज इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल हियर, ठीक है। और जब आप फिक्स लेआउट, मतलब जब हम बैक इन 90s या इनिशियल 20s में अगर मैं बात करूं, जब हम यूज करते थे, जब फिक्स स्क्रीन साइज स्टैटिक डिजाइन होते थे, तो मैंने यहाँ मेंशन भी किया पॉइंट, ठीक है, वो हो गया पिक्सल। ठीक है, तो याद रखना आपको विड्थ के लिए परसेंटेजेस यूज करने हैं। मैं ये नहीं कह रही विड्थ पिक्सल कहीं नहीं यूज होगा विड्थ के लिए, जो बेसिक आउटर स्ट्रक्चर या लेआउट है उसके लिए तो ये यूज होगा परसेंटेज, ठीक है। अभी जो आप ये लिखते हो ना ये 48 वगैरह, तो यहाँ पे ये आप एक हमारे पास मेथड होता है कैल्क मेथड इन जेएस, ठीक है। तो हमारे पास एक ही कैल्क मेथड होता है, लाइक अभी क्या हो रहा है, आप कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर रहे हो ना सारा कुछ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, कैल्क, ठीक है, 100% डिवाइड बाई 3, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, -10 पिक्सल ऐसे। तो अभी अभी सपोज मैंने यहाँ 48% लिखा था ना टीम, 48%। अब ये 48% मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा था, इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्क फंक्शन है, इसके अंदर मुझे 100% कितने से डिवाइड करना है, 3 से, ठीक है, या 2 से डिवाइड करना, सॉरी, ठीक है, माइनस उसमें मुझे क्या करना है 10 पिक्सल, या माइनस मुझे उसमें करना है 2%, ऐसे कर, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कैल्क मेथड में आपने क्या किया, 100% डिवाइड बाई 2, आपको जो भी उसके बाद प्लस माइनस करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है करने का, कैलकुलेटर पे जाने से अच्छा यहाँ पे लिखो। क्लियर, रिस्पॉन्सिव पार्ट क्लियर है सबको, और कैसे आपको यूज करना है ये कोड बिल्कुल हैंडी रखना, कभी भी आप कर रहे होगे आपको ये हेल्प करेगा। तेजवीर, सुप्रीत, साहिब, ऋषभ, कोमल, दिव्या, व्याशदीप, इज इट क्लियर? Okay. So this is the assignment. Okay. So what you all have to do is, these are the two assignments you have to do. Okay. First one is this one. So in this case, and let me just explain. This is heading. This is HR. Okay. When you reduce the screen size, this is the image. You can get any half face image from online. So initially, you can imagine this is one box. This is second box. Okay. This is 50% division. This is 50%. So in a row, two boxes are there. And further, these boxes are divided into three parts. So once you reduce the screen size, this box will come in a row and these three boxes will come below it. Okay. And further you reduce the screen size, what will happen? These three boxes will come in a separate row. Okay. That is how. So initially कैसे होगा, ये एक बॉक्स आएगा, ठीक है, ये पूरी आएगा इनिशियली जैसे स्टैंडर्ड बनाया, फिर 900 पिक्सल से नीचे जाओगे तो क्या आएगा, एक बॉक्स ये आएगा और उसके नीचे ही बिल्कुल ये तीन यहाँ पे इसके प्लेस हो जाएंगे। पर लेट्स से मैं मोबाइल डिजाइन में गई तो क्या होगा, ये तीन बॉक्सेस भी अलग अलग रो पे आएंगे, ठीक है, इसी के नीचे, ये एक रो में, एक के रो में, एक के रो में, और ये यहाँ पे इमेज है और ये बैकग्राउंड है, ये इमेजेस है, ठीक है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये हाफ फेस इमेज कुछ भी ले लेना ऑनलाइन। सेकंड है ये आपको ये बिल्कुल फ्लिपकार्ट का है, ठीक है, रेप्लिकेट करना है, ये 4 बॉक्सेस है। अगेन मैं ये कहूंगी एक अच्छे से बना लो, बाकी में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये इमेज, टेक्स्ट, रिपीट, ये आ जाएगा, ये डॉटेड आपको पता ही है, HR, सॉरी, ये बॉक्स बनाना, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम करना, यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, बटन आ जाएगा, दैट्स इट।
एक बनाओ, बाकी में कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये आपको रिस्पॉन्सिव क्या करना है, 4:2, 2:1, एटलीस्ट 0 से 1400 पिक्सल तक तो ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए दोनों। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगों को पूरी करनी है। वन मोर थिंग, कल आप लोगों का डाउट सेशन होगा इवनिंग में, ठीक है, कल सैटरडे है। CSS इज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर मेक श्योर आप सारा प्रैक्टिस कर लो, कल सेशन अटेंड करना। लास्ट वाले सेशन में हार्डली 2-3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। मे बी HTML में डाउट ना हो, बट आई थिंक CSS के रिस्पॉन्सिव पार्ट में मोस्टली आपको हो सकता है डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर यू ज्वाइन टुमारो। टाइमिंग टीम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म हो जाएगी, टाइमिंग क्या होगी कल के सेशन की, इवनिंग की अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5 PM होगा, ठीक है। मेक श्योर आप उससे पहले ये वाली असाइनमेंट और कल की असाइनमेंट तो कंप्लीट कर ही लो, और कल की असाइनमेंट को भी रिस्पॉन्सिव कर ले, ठीक है। ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लो कल के सेशन से पहले, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक पे? अगर पढ़ लेना, रिवाइज करना, कल कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो कल मैं टॉपिक भी रिपीट कर दूंगी अगर कोई डाउट होगा तो। बट मेक श्योर यू ज्वाइन ऑन टाइम फॉर द डाउट सेशन। किसी को कोई डाउट? सो मंडे वी विल स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मंडे में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए। आई विल शेयर दिस कोड विद द टीम। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है देन प्लीज आज कुछ भी, क्योंकि हम मंडे से JS कर रहे हैं, वांट योर HTML CSS टू बी लाइक कंप्लीटली डन। All right, thank you team, we'll connect tomorrow for the doubt session. Bye.